Okay. Acha ji. So the paper 5 that we're going to start with today is a very recent paper. It's from October, November 2025, paper 5, variant number 3. So today we will be doing the first question. ठीक है? Okay. So the first question states a juglone is a chemical produced by plants in the genus Juglans, which includes different species of walnut tree. Juglone produced by a black walnut tree can diffuse into the soil surrounding the tree. Groups of scientists have observed that juglone affects different species of plant growing close to black walnut trees. So the walnut trees, which basically produce this chemical juglone, release that juglone into the soil, and the plants growing near to the walnut trees would obviously be sharing the same soil with the walnut trees are affected by the juglone chemical. Juglone can reduce the percentage of seeds that germinate, delay the start of germination, or reduce growth. So for the other chemicals which are for other plants which are present near to the walnut trees, this juglone, what it does is it inhibits their growth either by reducing germination, delaying germination, or reducing overall growth. In some studies, juglone has no effect on germination or growth. So, कुछ cases में it was observed that juglone was affecting the growth of other plants, whereas in some studies it was also seen that juglone did not affect the germination or growth. A student planned to investigate the effect of juglone on the cucumber plant. In the investigation, the student placed some damp soil containing juglone in a tray, added some cucumber seeds to the soil, placed the container in suitable environment for germination and growth. Germination के लिए जो suitable environment होती है वो adequate air supply होती है ताकि oxygen मिलती रहे आपके seed को, moisture and adequate temperature. Those are the suitable environment for germination. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है सब कुछ अभी तक? क्लियर है? Figure 1.2 shows cucumber seedlings, young plants, a few days after germination. The student planned to compare the effect of exposing cucumber seeds to juglone solution with a concentration of 1 into 10 to the power minus 3 mole per decimeter cube, which is a concentration that has been measured in soils surrounding black walnut trees. A control কথা treatment. বলতেই कल থাকো নাকি हमने সব সময়? discuss Safa, your mic is okay, you've muted yourself. अच्छा, कंट्रोल ट्रीटमेंट क्या होती है? कल हमने डिस्कस किया था कंट्रोल ट्रीटमेंट या कंट्रोल ग्रुप के बारे में. व्हाट इज अ कंट्रोल ट्रीटमेंट और अ कंट्रोल ग्रुप? So we're not introducing the IV, we're not giving them the juglone, and we're only monitoring them in the absence of the IV. IV in this case is the juglone solution. The student planned to determine the percentage of cucumber seeds that germinated in soil, the growth of each cucumber seedling 10 days after the appearance of the seedling above the soil. Identify the independent variable in this investigation. Juglone is a chemical which is released by walnut trees. So juglone concentration, or you can say presence of juglone, that would be the independent variable. Okay. Now हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर लेवल्स ऑफ आईवी क्या होते हैं कि हमारे पास हम कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईवी यूज कर रहे हैं, हम कितने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आईवी यूज कर रहे हैं. तो हमारे पास क्या कहते हैं, he would say that identify the independent variable would be the presence and absence of juglone. बिकॉज हम दो चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप जगलोन कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहते हो दैट्स ऑल्सो फाइन. ठीक है, अगर खाली जगलोन भी लिखोगे दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल. द कॉन्सेंट्रेशन जस्ट मेक्स इट मोर बेटर, सो लिखो बिल्कुल. नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि हम जो चीज मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जगलोन, हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं. सो दैट वुड बी आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Juglone solutions are prepared using a mixture of solvents. The student was provided with a juglone solution with a concentration of 0.1 mole per dm cube, and he was also provided with a mixture of solvents. Using the solution provided, the student prepared a juglone solution with a volume of 500 cm cube and a concentration of 1 into 10 to the power minus 3 moles per decimeter cube.
The students carried out one dilution to prepare 1 into 10 to the power minus 3 moles per decimeter cube solution using measuring cylinders. State the volume that the student used to carry out the dilution to produce 500 cm cube of 1 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube jug solution. So what's the formula that you guys used to use in AS? क्या formula use करते थे आप? C1V1 equals to C2V2, right? Okay. हमारे पास हमें फाइनल वॉल्यूम ऑफ आवर जग लोन सॉल्यूशन पता है. फाइनल वॉल्यूम कितना है? 500 cm क्यूब फाइनल वॉल्यूम होगा, राइट? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनाना चाहते हैं, 1 into 10 to the power minus 3. वॉल्यूम ऑफ द जगलोन सोल्यूशन, जो हमारी स्टॉक सोल्यूशन है, वो कितनी है वो हमें नहीं पता. वो हमने एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी है कि हम डाइल्यूशन के लिए कितनी वॉल्यूम यूज करेंगे हमारी ओरिजिनल सोल्यूशन की, लेकिन हमें ओरिजिनल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता है. इज दैट करेक्ट? ये सब अग्री करते हैं इससे? एनीबडी हु हैज एनी कंफ्यूजन? ओके, कैन यू गाइस फाइंड आउट एक्स फॉर मी प्लीज? अच्छा, व्हाई डू वी नी हाउ डू वी नो कि हम सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं या सिंपल कर रहे हैं? यहाँ पर क्या लिखा है अनस? द स्टूडेंट कैरिड आउट वन डाइल्यूशन. सो सीरियल डाइल्यूशन में तो मल्टीपल डाइल्यूशन होती है ना. अगर वन डाइल्यूशन है तो सिंपल डाइल्यूशन है. ओके, सो एक्स इज कमिंग आउट टू बी 5 cm क्यूब, राइट? ना हमारे पास 5 cm क्यूब हम जगलॉन सोल्यूशन यूज कर रहे हैं और हमें कितनी बनानी है? हमने 500 cm क्यूब बनाना है अपनी फाइनल सोल्यूशन को. तो जो फाइनल सोल्यूशन है उसमें 500 cm क्यूब को हम किस तरह से डिवाइड करें? 500 cm क्यूब में 5 cm क्यूब आपका जगलॉन होगा एंड x cm क्यूब आपके पास मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होंगे जो आप ऐड कर रहे होगे टू डाइल्यूट योर ओरिजिनल सोल्यूशन. So how many centimeter cube or how much volume of mixture are we using? We're going to use 495 cm cube of the mixture of solvents to dilute our original stock solution. Everybody understands कि हमारे पास जो volumes हम state करेंगे वो हम 5 centimeter cube of our 0.1 mole per dm cube Jaglon solution होगा and 495 cm cube of our mixture of solvent होगा to form a 500 cm cube of 1 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube Jaglon solution. So use 5 cm cube of 0.1 mole per dm cube. Outline one improvement the student could make to reduce the percentage error while carrying out the dilution. Okay, हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं डाइल्यूशन में बेसिकली वॉल्यूम्स को डील कर रहे हैं एंड हमारे पास एक्यूरेट अमाउंट ऑफ आवर वॉल्यूम शुड बी प्लेस्ड. हमारे पास अगर हमें एक्यूरेट अमाउंट यूज करनी है, जो एक्यूरेट अमाउंट के लिए हमारे पास या तो हम क्या कहते हैं मोर प्रिसाइज एपरेटस यूज करेंगे. मोर प्रिसाइज एपरेटस के लिए हमारे पास क्या कहती हैं, अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, वॉल्यूम के हिसाब से मोस्ट प्रिसाइज क्या कहते हैं एपरेटस कौन सा होता है जिसके कम से कम एरर होता है? ग्रेजुएटेड पिपेट, ठीक है. एनीथिंग एल्स? प्यूरेट या हम सिरिंज यूज कर सकते हैं, ठीक है. So if I would have been in the exam, I would have used pipette, volumetric pipette या graduated pipette में लिखती because pipette ज्यादा exact होता है, but आप burette भी लिख सकते हो या फिर syringe भी लिख सकते हो, ठीक है. Neil has stated use a क्या? Okay, I missed Neil's answer. Volumetric pipette, if you use larger volume for juggling, yeah, using larger volumes is also taken as a correct answer, but आपका जो टॉप प्रायोरिटी आंसर होता है वो यही होता है कि आप एक बेटर या मोर प्रिसाइज apparatus यूज करो. इफ यू वांट टू स्टेट दैट यूज लार्जर वॉल्यूम देन स्टेटेड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ऊपर यहाँ पर लिखा है हमारे पास, वेयर इज इट, अगर हमें 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आवर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है और 495 cm क्यूब ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स लेना है,
तो हम इनसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इनसे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम अगर यूज करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, वी आर गोना इंश्योर कि हमारे पास ये वाली कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाए. सो लेट्स से हमारे पास यूजिंग स्लाइटली ग्रेटर volume of original solution and the mixture of solvents would also ensure, would also reduce the percentage error. ठीक है. सो ये भी हमारे पास एक सेकेंड ऑप्शन हो सकता था, हाउ टू इम्प्रूव आवर डाइल्यूशन. What do you want to add related to concentration, Zena? Can you tell me what you want to write so that I can let you know if that's correct or not? Okay, I will change it to it. अगर हम इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम अपना कॉन्सेंट्रेशन जो डाइल्यूट करके अचीव करना चाह रहे हैं वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे ना. हमें बेसिकली इंश्योर करना है कि हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकें. हम 1 × 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब से क्लोजेस्ट डाइल्यूशन बनाना चाहते हैं विद लिटिल एरर्स. So for that, the ideal way would have been to use a more accurate apparatus, which would have given us the exact volumes which is needed to form the diluted solution. बट अगर हम वो नहीं कर सकते, अगर हमारे पास पिपेट अवेलेबल नहीं है, पिपेट अवेलेबल नहीं है, सिरिंज अवेलेबल नहीं है, सो एज अ सेफर ऑप्शन व्हाट वी कैन डू कि हमने जो वॉल्यूम्स कैलकुलेट किए हैं ऊपर, उन वॉल्यूम से थोड़ा ज्यादा हम क्या कहते हैं वॉल्यूम्स यूज करके अपनी डाइल्यूशन कर लें. ओके. हमारे पास कंट्रोल के बारे में यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट्स a suitable control the student could use and explain why the student decided to include a control in the investigation. हमारे पास क्या कहते हैं, कंट्रोल ट्रीटमेंट क्या थी, कंट्रोल ट्रीटमेंट वाज our seeds without the explanation for this to confirm that any effect on the growth or germination of the seed is only due to the presence of juglone. To confirm that any effect on the growth and germination is due to juglone solution. For the previous question of the IV, why can we write concentration? Because aren't we able to compare the experiment with the control experiment? Okay, over here. अच्छा देखो, I think so. ऐसा किसी का क्वेश्चन आया था पहले भी, that why are we writing presence and absence of juglone? Why aren't we only stating juglone concentration? So okay, the thing over here is अगर आप presence and absence of juglone खाली लिखोगे तब आप mention करोगे इस तरह से अपना IV. Presence and absence of juglone is our independent variable. But if you're writing juglone concentration, so आपको फिर वहां पर क्या कहती हैं, प्रेजेंस एंड एब्सेंस का वर्ड यूज नहीं करना, वहां पर आप सिंपली जगलोन कॉन्सेंट्रेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. एज फार एज राइटिंग, व्हाई कैन वी राइट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज हम क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन को ही तो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जीनत कैन यू प्लीज इलैबोरेट. तो हमारे पास ये कहते हैं जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास जगलोन कॉन्सेंट्रेशन है, राइट. This is the thing that we are manipulating. We are either manipulating juglone concentration or we are manipulating the presence and absence of juglone. So हमारे पास जब मैनिपुलेट कर रहे होते हैं जो चीज, वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का आईवी होता है ना. मैं जर्मिनेशन या ग्रोथ को तो मैनिपुलेट नहीं कर रही, मैं जगलोन कॉन्सेंट्रेशन को मैनिपुलेट कर रही हूँ, राइट. नहीं, हमारे पास यहाँ पर मेंशन है ना, द जगलोन सॉल्यूशन विद अ concentration of 1 × 10⁻³ mole, what is the concentration that has been measured in soil surrounding black walnut trees. तो हमारे पास तो ये कहती है इंफॉर्मेशन में मेंशनड है बिफोर द पार्ट ए कि जगलोन सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं विद अ सर्टेन concentration. So that juglone concentration is our what do you say, IV, right? हमारे पास हम जिस चीज का इफेक्ट मेंशन कर रहे हैं
on something, that is the cause, right? Cause is your IB, effect is your DV. So the cause over here is Juglon solution and its concentration, obviously, upon the growth and germination of your cucumber seedlings. Okay. Describe a method the student could use to investigate the effect of juglone on the percentage of cucumber seeds that germinate, the growth of each cucumber seedling 10 days after the appearance of the seedling above the soil. हमने बेसिकली मेजर करना है ग्रोथ को हमारे कुकम्बर सीड्स की, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास टेल में इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? अभी हम पूरे अपने कंट्रोल वेरिएबल्स में नहीं जाएंगे या मेथड्स में नहीं जाएंगे. जस्ट टेल मी इफ आई हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ cucumber seeds that germinate, हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एंड हम कैसे ग्रोथ ऑफ ईच cucumber seedling 10 days after the appearance of the seedling above the soil मेजर कर सकते हैं? सो जर्मिनेटेड सीड्स हम जब ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, स्टार्ट में हम देखेंगे कि हम टोटल कितने सीड्स को क्या कहती हैं सोइल में पुट इन कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट हम क्या कहते हैं, वी वुड सी कि हमारे पास जितने सीड्स हमने पुट इन किए थे उनमें से कितने जर्मिनेट हुए हैं और हम क्या कहते हैं उनकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, राइट? सो वी वुड हैव टू फर्स्ट रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ सीड्स दैट वी आर प्लेसिंग इन फॉर जर्मिनेशन and how many of those actually germinated, and using these values we would take out the percentage. ठीक है? So इसको हम रिकॉर्ड करके फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. फिर अगर हम ग्रोथ की बात करें, सो ग्रोथ जो हम 10 डेज के बाद मेजर करेंगे, सो फॉर दैट वी यूज स्केल, रूलर, ठीक है? हम क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो हमारे पास जस्ट अबव द सॉइल, उसको हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे. एंड ऑब्वियसली हम रूलर से जो भी उसकी मैक्सिमम हाइट है उसको मार्क करेंगे. एंड थ्रू दैट वी विल बी एबल टू measure the height or the growth of the seedlings. Make sense? Any questions? ठीक है. नाउ टेल मी, हमारे पास क्या कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होंगे? व्हाट थिंग्स डू वी हैव टू कीप सेम और स्टैंडर्डाइज थ्रू आउट दिस इन्वेस्टिगेशन? अच्छा, when we're talking about जगलोन यूजेज यहाँ पर, तो हमारे पास जगलोन यूजेज तो एक ही है. हमने क्या कहते हैं, एक ही क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन बनाई है of 1 into 10 to the power minus 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ जगलोन, राइट? तो हमारे पास जगलोन तो हम एक ही यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ जगलोन यूज तो हमारा आईवी है, राइट? सो हम उसको स्टैंडर्डाइज तो नहीं कर रहे, वो तो हमारा आईवी है, वो हमारा कंट्रोल वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है? बट व्हाट वी कैन इंश्योर इज कि हम जो सीड्स यूज कर रहे हैं वो हमारे पास सेम हो, यानी कि हमने क्या कहते हैं सेम cucumber सीड्स यूज किए हों, यानी कि सेम पेरेंट से जो सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं हमने वही सीड्स यूज किए हों, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ cucumber सीड्स यूज ना किए हों. फिर हमारे पास टेम्परेचर सेम अगर हम रखें, हाउ कैन वी कीप द टेम्परेचर सेम? Okay, or can we use a water bath over here? Right? I think somebody mentioned about growth chambers या greenhouse. So हम growth chambers में या greenhouse में जिसमें हमारे पास हम ventilation को control कर सकते हैं, हम वो use करेंगे. So growth chamber या greenhouse में हम अपने plants को grow करवा रहे होंगे, ठीक है? आगे हमारे पास controlled environment, तो light intensity को हम कैसे control करेंगे? हमारे पास क्या कहती हैं हम सेम लाइट इंटेंसिटी की या तो एलईडी लाइट्स यूज कर सकती हैं या हम लैम्प्स यूज कर सकते हैं जिनकी जो लाइट इंटेंसिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर यूजिंग अ लैम्प, तो हमारे पास हमें उनकी लाइट इंटेंसिटी पता होगी, राइट? हम जो भी एलईडी यूज कर रहे हैं, लैम्प यूज कर रहे हैं, वी वुड नो इट्स लाइट इंटेंसिटी. सो हम क्या कहते हैं, सेम लैम्प या सेम एलईडी यूज करेंगे फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, द सीड्स व्हिच वर ग्रोइंग with the Jaglon solution, and we'd use the same type of lamp, same light intensity for our control setup as well, जिसमें हम Jaglon solution administer नहीं कर रहे. So हमारे पास यूनिफॉर्म लाइटनिंग होनी चाहिए, ठीक है? ओके, सो यही थे टाइप ऑफ सीड. फिर हमारे पास वो टेम्परेचर एंड एयर वेंटिलेशन को हम ग्रीन हाउस के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, और क्या कहते हैं सेम लाइट इंटेंसिटी के एलईडी या लैम्प्स यूज करके हम क्या कहते हैं लाइट को स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे. इज दैट करेक्ट?
बेसिकली हम जो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स कर रहे हैं, चलो आई स्टार्ट राइटिंग। तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड या कंट्रोल वेरिएबल्स जो हमारे हैं, जिनको हमने सेम रखना है फॉर बोथ आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन सा है, जिसमें हम ड्रग लोन सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, और हमारा कंट्रोल सेटअप कौन सा है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ड्रग लोन सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहा है। दोनों की कंडीशंस हमने सेम रखनी है। वी हैव टू इंश्योर कि इनको जो कंडीशन मिल रही है, एनवायरमेंट मिल रही है, वो सेम हो। सो हमारे पास सेम टाइप ऑफ ककम्बर सीड्स होने चाहिए, राइट। सेम टेम्परेचर मेंटेन्ड where growing both the experimental group seeds and नहीं, कंटिन्यूस आपने कहीं पर भी पॉइंट्स में नहीं लिखना, ना P4 में ना P5 में, पॉइंट्स में नहीं लिखना होता। The light is same, light intensity is kept the same, so ये हमारे पास standardized variable हो गया। Yeah, you can write the points in the banner. That's how you have to write, right? Are we going to mention the steps like IV, DV and CV? अच्छा, सीवी की मतलब आप यहाँ पे कंट्रोल को भी बात करें। देखो हमने क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया। सो वी आइडेंटिफाइड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वी हैव आई टॉक्ड अबाउट द कंट्रोल वेरिएबल एज वेल। सो हम कंट्रोल के बारे में और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट इन आवर इन्वेस्टिगेशन मेथडोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ मेथड आउटलाइन करना है। हाँ, अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, वो अगर आप लिख सकते हो, अगर वो वैलिड है फॉर द केस तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर वो वैलिड नहीं है, बिकॉज हम पूरी जो अपनी डाइल्यूशन है वो पार्ट बी में कर कर आ चुके हुए हैं। सो यहाँ पर हम मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अपने मेथड में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किस तरह से अपना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाई है वो हम पार्ट बी में डिस्कस करके आ चुके हैं। So you have to be very vigilant in identifying when can you talk about independent variable in your long answer and when you can not talk about, ठीक है। कंट्रोल वेरिएबल्स के बारे में वो यूजुअली इनिशियल पार्ट्स में नहीं पूछते, तो कंट्रोल वेरिएबल्स के बारे में या स्टैंडर्डाइज जो हमें चीजें करनी होती हैं उनके बारे में हम मेथड में जरूर लिखते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज आप पिछले किसी पार्ट में आंसर करके आ चुके हुए होते हो, आप वो भी रिपीट नहीं करोगे। सो रेपिटेशन ऑफ समथिंग दैट यू आंसर्ड अबव would not get you marks, ठीक है। So ये स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स के एक एक मार्क फॉर ईच ऑफ आवर वेरिएबल की हम बात करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हमने जो डिस्कस किया था, हाउ टू मेजर द परसेंटेज एंड हाउ टू, हाँ मार्क्स कट नहीं होंगे बट मार्क्स मिलेंगे भी तो नहीं, तो आपकी जगह जाया हो सकती है। सो इन द केस आपको कुछ भी मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, दैट्स गारंटीड, कटेंगे नहीं लेकिन मिलेंगे भी नहीं। सो आई डोंट नो इफ यू शुड राइट और नॉट, पर्सनली देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग। सो अगर मार्क्स मिल सकते होते तो ऑब्वियसली आई वुड हैव सेड कि आप लिख लो, पर मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर we'll talk about how we'd measure the percentage of cucumber seeds that germinate. After 10 days, measure the height of the young seedlings by a ruler. Count the number of seeds that germinated
divide them by the total number of seeds which were placed in soil for growth, in soil for germination, sorry. Multiply by 100 to get the परसेंटेज अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला एक्सप्रेस करना चाहते हो आप एज अ फॉर्मूला भी एक्सप्रेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज ए paragraph. So you can say count the number of seeds that germinated and use the formula लिखो to calculate the percentage of the number of seeds that germinated. फिर हमारे पास वैलिडिटी अगर हमें अपनी सॉरी रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है हम रिलायबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे रिजल्ट्स की हाउ कैन वी मेक दिस इन्वेस्टिगेशन रिलायबल गुड सो to ensure reliability of your investigation, carry the steps for multiple, carry the experiment on multiple seeds and calculate mean for each of the two groups. फिर हमारे पास सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे जब नोन हमारे पास हमें नहीं पता कि इरिटेंट है कि नहीं है सो सेफ साइड पर हम लिख देंगे दैट जगलोन कुड बी एन इरिटेंट सो फॉर दैट वी वुड यूज व्हाट वी वुड यूज ग्लव्स or a mask to protect us from the juglone getting to our skin or protect us from inhaling the juglone. So as a safety precaution, use gloves and masks to ensure that juglone is not inhaled or is not inhaled or touches the skin. So yeah, that's your answer. Any questions? Anything important that I missed in the chat box? नहीं लाइंस बहुत है मैंने क्या कहते हैं पॉइंटर्स में लिखा है ना और मेरी राइटिंग भी इतनी खूबसूरत है इस वजह से लाइंस ही वरना इनफ लाइंस होती हैं आपने छोटा छोटा लिखना होता है बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते हम ओके ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही जब मैंने कराया था आप लोगों को डिटेल सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई यूज्ड सो जस्ट जल्दी से हम ये क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं एंड फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी Another student investigated the effect of juglone on a different species of plant called crimson clover. The student recorded the number of days required for germination. 10 seeds treated with a juglone solution with a concentration of 1 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube. 10 seeds not treated with a juglone solution. The student used a t-test to analyze the results. The t-test is appropriate for the number of seeds that were used. So just two other reasons why the t-test is an appropriate statistical test to use for this investigation. So normal distribution is observed in the population and हमारे पास continuous data है इस वजह से yeah this is a rata thing we need to know the criteria for each statistical test so around 3 to 4 criteria होता है
The null hypothesis for this t-test was that there is no difference between the time taken for seeds to germinate when treated with juglone and the time taken for seeds to germinate when not treated with juglone. तो हमारे पास दो ग्रुप्स के दरमियान क्या कहती हैं जो भी हमने टेस्ट रन किया है, हमने बोला यह है कि उन दोनों ग्रुप्स के दरमियान के जो आंसर्स हैं उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा. The calculated value of t was 2.090. The student compared 2.09 to the values in table 1.1. Using table 1.1 and the calculated value of t of 2090, state and explain what the student can conclude about the results. Degrees of freedom. Degrees of freedom कैसे निकालते हैं t test के लिए? n1 plus n2 minus 2. Is that correct? Guys, is that correct? Good. So my pass n1 is 10, n2 is 10. So 10 plus 10 minus 2, 20 minus 2 equals to 18. अच्छा, जो माइनस वन वाला फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इस तरह से लिखा जाता है n1 माइनस वन प्लस n2 माइनस वन. तो इसको अगर आप एक्सपैंड कर दोगे एक्सपेंशन के बाद तो आपके पास ये आ जाएगा n1 माइनस वन प्लस n2 माइनस टू. अलजेब्रा आप अप्लाई कर दोगे n1 प्लस n2, सॉरी ये माइनस वन है, gives you minus 2 because minus and minus plus sign आपका however minus ही रहेगा. Make sense? So you'll get the same thing. Yeah, it's better to memorize this. ये तो आसान चीज है, ये तो आसान चीज है to memorize. जो नंबर ऑफ कैटेगरीज माइनस वन खाली होता है एज नील सेट वो हम काई स्क्वायर में करते हैं. सो फॉर काई स्क्वायर नंबर ऑफ कैटेगरीज माइनस वन होता है. फॉर टी टेस्ट क्योंकि हम दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम हर ग्रुप के सैंपल साइज से एक माइनस कर देते हैं तो कलेक्टिवली हम माइनस टू करते हैं अपने टोटल सैंपल से. सो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 18. 18 पे हम 0.05 की रिलायब वो देखेंगे प्रोबेबिलिटी लेवल 2.101. सो जो हमारी टी वैल्यू है 2.09, 2.09 जो है वो राइट हैंड साइड पर होगी या लेफ्ट हैंड साइड पर होगी? Where would 2.090 fall? On the left hand side. So 2.090 would be somewhere between 0.10 and 0.05. In that case, do we accept the null hypothesis? Do we reject the null hypothesis? Is the probability greater than 5% or lesser? We will accept the null hypothesis. Very good. So, null hypothesis is accepted since the critical value at 18 degrees of freedom is 2.101, which is greater than the t value 2.09. This means there is no significant difference. Clear? Any questions? So 1 mark is for accepting the null hypothesis. This is 1 mark. Another mark is to describe the relationship between the critical value and the t value. So this is your 2 marks. And to suggest, explain what this means, that there is no significant difference, it's your 3rd marking point. Okay? Yes, now you guys have chutti. I shall be seeing you guys tomorrow. Inshallah. Okay, what do you want me to explain again, Deenat? हमारे पास हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें ना, नल हाइपोथेसिस को अगर हम एक्सेप्ट करें, नल हाइपोथेसिस क्या था? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर सीड्स टू जर्मिनेट. तो अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, एक्चुअली क्या मान रहे हैं, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस
between the time taken for seeds to germinate when treated with juglone and the time taken for seeds to germinate when not treated with juglone. So if we are accepting the null hypothesis, then we are saying that there is no significant difference. If we are rejecting the null hypothesis, that means that there is a significant difference. ओके द हमारी जो टी वैल्यू है टी वैल्यू हमारे पास 5% प्रोबेबिलिटी से ज्यादा पिलाई कर रही है या लेस देन पिलाई कर रही है मोर पिलाई कर रही है सो दिस कुड बी अ चांस इवेंट राइट हमारे पास ये चांस इवेंट है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्चुअल कॉज क्योंकि अगर लेस देन 5% होता तो हमारे पास ये चांस इवेंट नहीं होता हम कहते हैं कि जो ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है दैट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस over here because it is falling at a level greater than 0.05 we would accept the null hypothesis and say that this is due to a chance event and the difference is not significant make sense I've shared the document now statistical analysis wala हमारे पास क्या कहते हैं अगर कोई चीज चांस पे डिपेंड कर रही है तो वो कभी होगी कभी नहीं होगी so जो डिफरेंस आ रहा है वो किसी कॉज की वजह से नहीं आ रहा अगर किसी फिक्स्ड कॉज की वजह से कोई चीज हो रही है तब वो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस राइट यहाँ पर जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास एक चांस इवेंट की वजह से आ रहा है सो द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट हमारे पास इतना डिफरेंस नहीं है कि हम कहें कि यहाँ पर एक कॉजल रिलेशनशिप की वजह से डिफरेंस स्टैब्लिश हो रहा है if there would have been a cause कि हमारे पास continuously difference आ रहा होता इतना ज्यादा हो रहा होता कि हमारे पास probability would have been less than 1 the difference is not due to chance but it is a consistent difference you would have said that the difference is significant but if the difference is at a value greater than probability of 5% it means that the difference is because of a chance कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है and therefore it is not a significant difference between the two things make sense सी हमने क्या कहते हैं एक सेकेंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर लिखा है ना that a large p-value means our result could have easily happened by random chance. This means we do not have strong enough evidence to reject our null hypothesis. ठीक है? So हम अपना null hypothesis accept कर लेंगे and we would say that there is no significant difference between the two groups or the two values or the two categories. You can use, let's say, आप एक gas syringe ले सकते हो to measure the volume of the Juglon solution and आप उतनी ही Juglon solution फिर spray करो आप ये कर सकते हो कि आप एक fixed volume of the Juglon solution को gas syringe के through या burette के through अपनी एक उसमें डाल दो what is that thing called spray gun में fixed volume of the Juglon solution आप draw करके spray gun में डाल दो और उतनी ही volume exact आप क्या कहते हैं spray करो और दोनों के लिए आप वो वॉल्यूम सेम रखो सो दैट कुड बी अ कंट्रोल वेरिएबल यस Second question states compounds containing nitrite ions present in many foods eaten by humans. Scientists tested the effect of different concentrations of nitrite ions on the population growth of 5 species of bacterium. All 5 species are pathogenic and can infect the human digestive system. So basically, they're stating that the food that humans consume often has nitrite ions, and scientists basically investigated the effect of different nitrite ion concentrations on the growth of 5 different species of bacteria, which were pathogenic and infectious in nature for humans. For each species of bacterium, the scientists placed suspensions of the bacteria in a microwell plate. A microwell plate is a plastic plate containing 96 wells. So a plate like this, which has different wells or different holes or depressions in which we can put in a solution. In this case, the scientists are placing the suspensions of bacteria. I've only shown 6 wells, but in actuality, the microwell plate has 96 wells. Which are similar to small test tubes. So in this plate हमारे पास एक basically inward depression या inward ये कहते हैं
स्पेसेस क्रिएट होती है जिसमें हम अपना सोल्यूशन सस्पेंशन प्लेस इन कर सकते हैं. In each well, the scientists added a suspension of the bacterial species. So, बल्कि मैं इनको 5 कर देती हूँ. 5 holes कर देती हूँ because we have 5 bacterial species. So, in each of the species, in each of the wells, हमारे पास क्या कहते हैं bacterial species चाहिए. So, let's say species A, B, C, D and E. उसकी suspension हमने एक एक well में place in की. A solution containing nitrite ion. So हमने क्या कहते हैं in wells में nitrite ion solutions place की हमने different concentration of nitrite ions की solutions बनाई होंगी. उनमें से क्या कहते हैं different concentrations एक एक well में हमने input की होंगी. And we also placed a nutrient broth. We know that for any tissue, for any cell to thrive, to survive, हमें एक उनको culture medium में रखना होता है. Culture medium is basically a solution or a broth of all the necessary nutrients needed for a group of cells to survive. The scientists incubated the microwell plate at 37 degrees Celsius for 24 hours. After 24 hours, the scientists estimated the number of bacteria in each well by measuring optical density using a microwell plate reader. So उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए 24 hours के बाद ये फिगर आउट किया, ये एस्टिमेट किया कि हर वेल में कितने नंबर्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज प्रेजेंट है. For each species of bacterium, the scientists repeated the experiment with several different concentrations of solution containing nitrite ions. So this methodology was repeated in a way कि हमारे पास हर bacterial species को हम different concentrations of nitrite ion से expose करें. तो let's say मैंने एक दफा अपनी microwell plate ली. उस microwell plate में मैंने अपने 5 different species of bacteria की suspensions डाले. First time पर मैंने let's say 0.5 मोल पर डीएम क्यूब नाइट्राइट आयंस सारे वेल्स में डाले. मैंने फिर क्या कहते हैं 24 आवर्स के लिए छोड़ा. 24 आवर्स के बाद मैंने देखा कि हर वेल में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं एस्टिमेटेडली. फिर मैंने रिपीट किया विद अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. सो मैंने अगेन आई प्लेस दीज 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन द 5 वेल्स. और हर वेल में लेट्स से मैंने पिछले अगर 0.5 कॉन्सेंट्रेशन यूज की थी तो इस दफा मैंने 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्राइट आयन कॉन्सेंट्रेशन एडमिनिस्टर की. सो इसी तरह से हम ये रिपीट करेंगे विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयंस फॉर ऑल 5 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम. और हर दफा 24 आवर्स के बाद हम मॉनिटर करेंगे कि इस कॉन्सेंट्रेशन पर हमारे पास क्या कहते हैं 24 आवर्स के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी थी. एनी क्वेश्चन सो फार? The scientists determined the lowest nitrate concentration at which no bacterial population growth had occurred after 24 hours. So, हमारे पास क्या कहते हैं इसका मतलब ये है कि लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन ली, एक 1 मोल पर डेसीमीटर की ली, एक 1.5 की ली, एक हमने लेट्स से 2 की ली एंड 2.5 की ली. ठीक है. इनमें से हमारे पास क्या कहते हैं लेट्स से 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के लिए फॉर वन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा दैट आफ्टर 24 आवर्स 75% bacteria was removed. मेरे पास 75% बैक्टीरिया रिमूव हुआ था, अभी भी 25% एग्जिस्ट कर रहा था. 1 पर लेट्स से हमारे पास नो बैक्टीरिया वर सीन. अच्छा, अगर 1 पर नो बैक्टीरिया वर सीन तो ऑब्वियसली बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या कहती हैं कॉन्सेंट्रेशंस पर भी नो बैक्टीरियल ग्रोथ वुड बी सीन फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया. डज दिस मेक सेंस? ये 0.5 पे हमने देखा कि लेट्स से फॉर बैक्टीरियल स्पीसीज ए, बैक्टीरियल स्पीसीज ए को हमने एडमिनिस्टर किया विद 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्राइट आयंस. 0.5 पर 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर ओनली 75% बैक्टीरिया वाज रिमूव. 25% बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरियल सेल्स हमें दिखाई दे रहे थे. हाउएवर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड ऑनवर्ड्स जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट आयंस थे उस पे हमें नो बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व हुई. नाउ हमारे पास फॉर ईच ऑफ द बैक्टीरियम स्पीसीज साइंटिस्ट ने कौन सी वाली कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट किया?
the lowest nitrite concentration at which no bacterial population growth had occurred after 24 hours. अगर हम बैक्टीरिया ए की बात करें from my example, so 1 mole per dm cube, 1.5 to 2.5. इन चारों पर after 24 hours no bacterial population growth is observed. लेकिन इनमें से what is the lowest nitrite concentration at which no bacterial population growth had occurred out of these four values? लोएस्ट नाइट्राइट आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या थी जिसपे इसके बाद हमारे पास नो बैक्टीरियल ग्रोथ हम देख रहे थे 1. सो फॉर दिस बैक्टीरिया हमारे पास साइंटिस्ट जो है वो 1 की वैल्यू ले लेंगे. सिमिलरली बी सी डी ई के लिए वो यही करेंगे. इन पांचों कॉन्सेंट्रेशन पर हमारे पास क्या कहते हैं, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन पर पहली दफा वो ऑब्जर्व करेंगे या जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी जिसपे नो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, दैट वुड बी टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज. यहाँ तक क्लियर है? The scientists standardized temperature, pH and time in the investigation. ठीक है, ये standardized था. ये हमारे पास जब भी हमने experiment कर रहे थे for all the bacterial species, and every time we were repeating it at a different concentration, the temperature, the pH and the time was kept constant. pH की value भी उन्होंने दी है कि 4.8 पे pH maintain था. State two other variables the scientists should standardize in this investigation. क्या क्या same रखना चाहिए scientists को other than temperature, pH and the time. चलिए, हमारे पास अगर आप कह रहे हो ऑक्सीजन, क्या हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हम वेरी कर रहे हैं या वो हमारे पास साइंटिस्ट कंट्रोल कर रहा है? हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक ये कहते हैं वैक्यूम में नहीं हो रहा या ये हमारे पास ग्रोथ चैम्बर में नहीं हो रहा कि हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं. हमारे पास ये ओपन एयर में कैरी आउट हो रहा है, हमारे पास व्हाट यू से एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और सैनिटाइजिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन wouldn't be a standardized vehicle. अगर हमारे पास हम ये एक कंट्रोल्ड सेटअप में कर रहे होते, एक चैम्बर में कर रहे होते जहां पर हम ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे होते, वहां पर we would have said that oxygen should have been kept the same. यहाँ पर जो चीजें हम मैनेज कर रहे हैं, हम उन चीजों में से देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीजें सेम लेवल पर सेम अमाउंट पर एडमिनिस्टर करनी है. सो हर वेल में हमारी जो वॉल्यूम ऑफ द बैक्टीरियल सस्पेंशन है दैट शुड बी द सेम. हमारे पास जो सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्राइट आयंस है, हम जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया हम वेरी कर रहे हैं ना, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हम वेरी कर रहे हैं. सो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज नहीं रखेंगे बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच वी आर वेरीइंग. हाउएवर हम हमारे पास हर कॉन्सेंट्रेशन की कितनी वॉल्यूम यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोल पर डीएम क्यूब. तो अगर मैं इसका 2 डेसीमीटर क्यूब यूज कर रही हूँ, 2 DM क्यूब यूज कर रही हूँ, तो मैं बाकी मेरी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन हैं उनको मैं 2 डेसीमीटर क्यूब पर ही एडमिनिस्टर करूंगी. सो द वॉल्यूम or the amount should be the same of the solution of nitrite ion. So, same volume of all the solution of nitrite ions. ठीक है. फिर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हम दे रहे हैं, नाउ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पे हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरियल स्पीसीज डिपेंड करता है. अगर मैं क्या कहते हैं ए में ज्यादा न्यूट्रिएंट ब्रॉथ दे दूं, बी में कम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ दे दूं, सी में क्या कहते हैं दोनों से कंपेयर ज्यादा दे दूं, सो मैं जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इक्वल नहीं रख रही फॉर ऑल द बैक्टीरिया. सो इसकी भी क्या कहते हैं वॉल्यूम शुड बी द सेम. अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन की हम दोनों की बात कर सकते हैं, दैट वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ शुड बी द सेम. मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? Okay, let's move to the next part. The results of the investigation are shown in figure 2.1. So on the y-axis, we have the lowest nitrite ion concentration at which no bacterial population growth occurred after 24 hours. And on the x-axis, we have the data for the different species, the 5 different species of bacteria that we were using in our investigation. State the type of data represented by the species of bacterium
and the lowest concentration in figure 2.1. So basically एक्स एक्सिस पे हमारे पास कैसे टाइप का डेटा है और हमारे पास वाई एक्सिस पे कैसे टाइप का डेटा है। एक तो मैं गलत कलर हमेशा यूज कर रही होती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर भी कलर चेंज कर देती हूँ। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस पे इज इट क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा? एक्स एक्सिस पे बेटे ये जो सारी हमारे पास बैक्टीरियम के नाम है, ये क्वांटिटेटिव डेटा कैसे हो सकता है? How are names of bacterium numerical values? They are categories, right? Qualitative data, है ना? So x-axis पर हमारे पास qualitative data है. We have the names of the bacterium species. अच्छा, qualitative data में हमारे पास फिर further types होती हैं nominal and ordinal. नॉमिनल में क्या होता है, हमारा डेटा अगर रैंक ना हो, ऑर्डर्ड ना हो। और ऑर्डिनल में क्या होता है, अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा ऑर्डर्ड हो। नाउ टेल मी, लुकिंग एट द ग्राफ, हमारे पास जो ग्राफ है वो ऑर्डर्ड में मतलब एक लोएस्ट टू हाईएस्ट में अरेंज है, हाईएस्ट टू लोएस्ट में अरेंज है, या ऑर्डर में अरेंज नहीं है? जो आपको बार्स नजर आ रहे हैं, आर दे इन ऑर्डर और आर दे नॉट इन ऑर्डर? दे आर नॉट इन एन ऑर्डर, देयर दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ए नॉमिनल क्वालिटेटिव डेटा। अगर आप खाली नॉमिनल भी देख दोगे, दैट एक्सप्लेन्स कि आपने इसको आइडेंटिफाई एज क्वालिटेटिव डेटा ही किया है। अच्छा, अब अगर हम नाइट्राइट लोएस्ट नाइट्राइट आयन कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ को देखें, तो ये क्या है? ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है? इट्स क्वांटिटेटिव डेटा, वेरी गुड। एंड क्वांटिटेटिव डेटा में इज इट कंटिन्यूअस और इज इट डिसकंटिन्यूअस? इट्स कंटिन्यूअस, क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 6 तक की हमें रेंज नजर आ रही है। वेरी गुड। सो कंटिन्यूअस। The two species of Salmonella shown in figure 2.1 are closely related. So हमारे पास Salmonella की कौन सी species है? We have this species and we have this species. Salmonella enteriditis and Salmonella typhimurium. Typhimurium, sorry. Calculate the percentage difference between the results shown in figure 2.1 for the species of Salmonella. अच्छा जी, हमारे पास Salmonella enteritis is where, so we have 0.2, 0.4, 0.6, so 0.6 और 0.8 के बीच में है, so 0.7. So this is 0.7. And when we talk about Salmonella typhimurium, it's at 5. ठीक है? So हमने percentage difference identify करना है between Salmonella enteritis and Salmonella typhimurium. So percentage difference, अच्छा यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ परसेंटेज इंक्रीज। सो आप क्या कहते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हो। आप क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में लोएस्ट वैल्यू भी ले सकते हो या हाईएस्ट वैल्यू भी ले सकते हो। पर्सनली हमारे पास क्या कहते हैं, यूजुअली हम परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, छोटे से बड़े में कितना डिफरेंस है। So for that, what we do, we simply say 5 minus 0.7 divided by 0.7 into 100. Can you guys calculate this for me? This would come out to be 6.14 point multiplied by 100 equals to 614.2। हमें जो अपने आंसर्स होते हैं, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे देना होता है।
फाइनली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। सो इसको हम 3 सिग्निफिकेंट पे अगर कर दें तो ये 6.614% हो जाएगा। ना, ये हमारे पास एक तरीका हो गया परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का। अच्छा, अगर उन्होंने परसेंटेज इंक्रीज लिखा हुआ होता, अगर यहाँ परसेंटेज डिफरेंस नहीं लिखा होता, अगर परसेंटेज इंक्रीज लिखा हुआ होता, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम यही मेथड यूज कर रहे होते। ठीक है, कि हमारे पास 0.7 से 614% इंक्रीज हुआ है, तभी 5 की वैल्यू आई है। सो हैड दिस बिन परसेंटेज इंक्रीज, आप लोगों ने स्ट्रिक्टली यही शो करना था। यहाँ पर उन्होंने क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज मेंशन नहीं किया हुआ, सो देयर इज अनदर वे दैट वी कैन डू आवर वर्किंग व्हिच वुड बी कि हम परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए 5 माइनस 0.7 और डिनोमिनेटर को हम अपना 5 रखेंगे। इफ वी आर गोइंग फ्रॉम 5 टू 0.7, तो इन दिस केस हमारे पास क्या परसेंटेज डिफरेंस आया इन 200, व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? 86%। नाउ आपने ये दोनों आंसर नहीं देने, आपने कोई एक आंसर देना है, ठीक है? सो यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी वाली मेथडोलॉजी एम्प्लॉय करोगे और कौन सा वाला आंसर दोगे। हाउएवर अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता तो हमें खाली यही दिखाना होता। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? We use figure 2.1 to state the species of bacterium that is most affected by nitrite ions, the species of bacterium that is least affected by nitrite ions. अच्छा, मोस्ट अफेक्टेड वो होगी जो थोड़ी सी भी क्या कहते हैं नाइट्राइट आयन से उसकी कंप्लीट एराडिकेशन हो रही है विद इन 24 आवर्स। सो हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं सबसे कम नाइट्राइट आयन कॉन्सेंट्रेशन पे कंप्लीट एराडिकेशन किस स्पीसी की हो रही है बिटवीन दीज 5? Yes, Yersinia, whatever this name is, Enterocolitica. So यहाँ पर हमारे पास इसको क्या कहते हैं 0.2, 0.4, 0.5 micromole per cm cube of nitrite ion concentration was enough to eradicate it. So this is the most affected. And हमारे पास least affected कौन सी होगी जिसको बहुत ज्यादा nitrite ion concentration required थे for its complete eradication, which is this one, or Salmonella typhimurium. So Yersinia bacterium. Okay. A student looked at the results and stated, consuming a lot of nitrites would improve the health of people because it would help to prevent diseases in the digestive system caused by pathogenic bacteria. Suggest 4 reasons why this conclusion might not be valid. Consuming a lot of nitrites would improve the health of people because it would help in disease prevention in the digestive system. So, हमारे पास क्या कहते हैं सबसे पहले नाइट्राइट्स जो हैं उनसे हमें क्या नाइट्राइट्स हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए? फॉर ह्यूमंस आर द माइक्रो और मैक्रो नाइट्राइट्स हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें क्या एक्सेस में कंज्यूम करने चाहिए? So one reason is that consumption of nitrites in large amounts could be harmful for humans since nitrites are micronutrients and are needed in less amounts. ठीक है? Then हमारे पास somebody mentioned about good bacteria. तो हमारी बॉडी में good bacteria होता है. For example, आप लोगों ने शायद O levels में पढ़ा होगा, कहीं नहीं पढ़ा तो I'll tell you. Our gut, our digestive system has good bacteria which is important for the synthesis of certain vitamins in our body. अगर हम क्या कहते हैं एक्सेस नाइट्राइट्स कंज्यूम करने लग जाएंगे, so it is very much possible कि ना सिर्फ हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया eradicate हो बल्कि the good bacteria which we need for our good gut health, they are also eradicated. So हमारे पास क्या कहते हैं removal of good bacteria from the gut is also possible. ठीक है?
फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इन दिस केस कैन आई से दैट अवर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो नाइट्राइट आयंस की सोल्यूशन थी, दैट वाज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज दैट करेक्ट? ओके। हम क्या कहते हैं, जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं टू वैलिडेट आवर रिजल्ट्स, टू इंश्योर कि हमारे पास आईवी ही कॉज कर रहा है हमारे डीवी को, हाउ डू वी कंफर्म दैट रिलेशनशिप, हाउ डू वी कंफर्म दैट आईवी इज द कॉज एंड डीवी इज द इफेक्ट in an experiment? By setting up a control experiment. हमारे पास जो हमने ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन हम फॉलो करते आ रहे हैं, यहाँ पर एट एनी पॉइंट उसने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की बात नहीं किया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की बात अगर नहीं की है तो वी हैवंट एस्टैब्लिश द फैक्ट कि हमारे पास जो कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो रही है एट द लोएस्ट नाइट्राइट आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर आईवी. So we do not have any evidence of a control experiment to back up the fact that our IV is causing the eradication of bacterial population. Does this point make sense? Okay. फिर हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है, if I ask you कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है या जो ये रिसर्च की है इस बच्चे ने, has this been conducted on bacteria present inside the person, or is it conducted in laboratory settings? इट्स इन द लैब. अगर ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह की होती दैट हमारे पास क्या कहते हैं, we took people who were infected by these bacterial species, and when they were infected by these bacterial species, during that course of time हम उनको micronutrients micronutrients कह रही हूँ, concentration of nitrite ion solutions administer कर रहे होते और देखते किस तरह से bacterial growth within the human कम हो रही है, bacterial reservoir within the human कम हो रहा है. अगर इस तरह की कोई एक्सपेरिमेंट होती जिसमें हम एक्चुअली इंसान को ये दे रहे होते नाइट्राइट्स और उनमें ये प्रोग्रेस क्या कहते हैं मॉनिटर कर रहे होते, और अगर उस एक्सपेरिमेंट पे हमारे पास ये चीज वैलिडेट हो रही होती तो हम कहते हैं कि हम इंसानों को ज्यादा नाइट्राइट्स अगर कंज्यूम करेंगे तो इट्स गुड. But over here, the investigation was not conducted on living humans. It was conducted in laboratory settings, which means that we cannot give a definitive conclusion on the basis of that. Make sense? Okay, good. With that, this paper comes to an end.